Production and cost. Types of Cost, product. we discuss Product. cost and सब भूल गए क्या होली में? Cost and production. कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी डिस्कस किए थे क्या हम लोग? मैम बस कॉस्ट था। Only cost tha, I think. Yes, today we will discuss production, revenue and relation between average cost, marginal cost and all this. Okay, and relation between average cost and marginal cost we discussed in our last class, I hope, if you remember. हाँ Do you मैम। remember, guys? So what is revenue? Firstly tell me, what is revenue? The income earning from sale of output। Yes, very good, very good. The amount of Yes, yes, Anushka. the amount of money that a producer receives for the sale of goods. Yes, revenue, the amount of money we receive by selling the goods and services is called as a revenue. Okay, in simple terms, the amount of money we receive by selling the goods and the services is called as a income. And income is classified into three parts: total revenue, average revenue and the marginal revenue. What? Total revenue, average revenue and the marginal revenue. Okay, so what is total revenue? Total amount of money received by firms from the sale of the given level of output is called as a total revenue. And how do we calculate total revenue, students? Price into output, sale, price into sale is called as a total revenue. Output means number of goods sold. Okay, average revenue, what is average revenue? Average revenue is revenue per unit, per unit of output. As we discussed in our cost session, average cost, per unit cost, that in the same sense in average per unit revenue, revenue per unit of output. So average revenue is equal to total revenue upon quantity sold. Okay, total revenue upon quantity sold. And marginal revenue, same like marginal cost. In marginal revenue, revenue derived by the selling of one additional unit of output. Okay, one additional unit of, in the cost, cost is one additional unit of output, but in revenue, revenue derived by the selling of one additional unit of output is called as a marginal revenue. Okay, so how do we calculate marginal revenue? Changes in total revenue upon changes in quantity sold. Okay, I hope revenue is clear to everyone. Yes, ma'am. यस मैम। Revenue is clear. Total revenue, average revenue, and marginal revenue. Now we are going to discuss marginal revenue. Just 1 minute. Let me share again your page. Now screen is visible to everyone. यस मैम। So production. What is production? What is production? We can define production in two ways: in classical ways or in the modern way. In classical ways or in the modern ways. Okay. So what is production? In classical view, creation of physical product or services is called as a production. But in the modern view, process of changes in the form of physical product or services it called as a production. Okay, process of changes in the form of physical product or services. जितने भी goods और services है उसमें थोड़ी थोड़ी changes करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक new product बना दे रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे कोई new product नहीं बना रहे हैं, creation of physical product नहीं है, बस there are here we are doing only changes in the process of the physical product or services in the modern sense. Okay, so in actual sense, what is production? So production is the process of the creation of utility. Okay,
जब हम किसी गुड्स को कोई प्रोडक्ट को देखते हैं तभी हमारे अंदर यूटिलिटी आती है। ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी मुझे हम लोगों को एसी का ऐसा फीलिंग हुआ था जब तक एसी इनोवेट नहीं हुआ था। बट वन जब एसी इनोवेट हुआ तो हमारे अंदर उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो गई। तो दैट्स वाई प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। चीजों को देख के हमारे अंदर यूटिलिटी क्रिएट होती है। दैट्स वाई प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, so what is the production function? Production function is the functional relationship between the combination of input and the maximum level of output. What is combination of input? Land, labor, capital. Okay, and maximum level of output is called as a production function. Functional relationship है किसमें quantity, Q क्या है, F land, labor, capital, quantity of output, labor, L represent labor, K represent capital, and D represent land. It is the functional relationship. Okay, it is the functional relationship, and there are two types of production functions: Cobb-Douglas production functions and the Leontief production functions. Okay, Cobb-Douglas and Leontief production function. Cobb-Douglas ये आप लोग के लिए important है, Leontief से questions नहीं आते हैं. Okay, कॉब डगलस का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इज इक्वल टू ए के पावर में ए एल एंड एल के पावर बी. ओके, इट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस. ओके, so now we are going to discuss there are two types of production functions. There are two types of production functions: short run production functions and the long run production function. Okay, short run production function and long run production functions. So what is short run production function? Short run production function is also called as a return to factor and law of variable proportion. Return to factor and the law of variable proportion. Okay, other name is also very important: return to factor and the law of variable proportion. And here the one factor variable, and it is the short term analysis. Short term में आपको पता है हम सारे factors को change नहीं कर सकते हैं. Here only one factor variables, one factor is variable and other are constant. Okay, but in long run it is also called as a return to scale and law of return to scale. Okay, law of return to scale. And here in the long run analysis we know here all the factors are variable. Here we can change all the factors. Okay, here we can change. आपको पता है शॉर्ट रन में हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं. ओनली वन फैक्टर्स कैन चेंज वेल. ओके, so I hope it is clear. Short run and long run production function. Other name is also important. Exam में आपके क्वेश्चन आया था law of variable proportion is short run production function, long run, or none of the above. So it is short run production function. And other name of law of variable proportion is return to factor and short run production functions. I hope it is clear to everyone. Yes, ma'am. Anyone have any query? Then they may ask. मैम कॉब डगलस का फॉर्मूला क्या बताएंगे आप? ए के के पावर ए एल एल के पावर बी स्मॉल बी. ओके, कैपिटल ए कैपिटल के के पावर स्मॉल ए कैपिटल एल एंड एल के पावर स्मॉल बी. मैम इसको नोट डाउन कर दीजिएगा एक बार. ओके, ठीक है, मैं लास्ट में आप लोग को लिख के दे दूंगी. ओके, ओके, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. प्रोडक्शन फंक्शन इज क्लियर. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. Short run and long run production function is clear to everyone. यस मैम. Yes, ma'am. So there are fixed factor. What is fixed factor? What is variable factor? Fixed factor, it is the factor which doesn't change with the change in output. As we discussed in the fixed cost doesn't change with the change in the output. In the same factor, fixed factor is the which doesn't change with the changes in the output. Variable factor, the application of which varies with the changes in output. If your output will increase, then your variable factors will also increase. If output decrease, then variable factors will also decrease. Okay, so utility
Production is the process of creation of utility. So how many types of utility are there? Form utility, place utility, time utility. Okay, form utility क्या है? Changes in the form. For example, आपके लिए मिट्टी जो है उसका कोई यूज नहीं है. ओके उसका कोई यूज नहीं है, बट उसके फॉर्म को चेंज करके, मिट्टी के फॉर्म को, सॉइल के फॉर्म को चेंज करके अगर हम कोई खिलौना बना देते तो वो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा. होगा या नहीं होगा? तो हमने क्या किया? जस्ट प्रोसेस में उसके क्या किया? चेंजेस किया. उसके फॉर्म में क्या किया? चेंजेस किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि हाउ इट इज Yes, ma'am. द यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी क्या है? अब जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पे एसी का रिक्वायरमेंट होगा, बट जहाँ पे ठंडा प्लेस है वहां पे एसी का कोई भी यूटिलिटी नहीं होगा. तो क्या होगा? जैसे जैसे प्लेस यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी, सप्लाइंग गुड्स एट द एप्रोप्रिएट टाइम. आपको एप्रोप्रिएट टाइम पे वो प्रोडक्ट मिलेगा, देन इट विल बी एबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी, दैट इज टाइम यूटिलिटी. ओके, अगर आपको टाइम पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो उसका कोई यूज नहीं होता है, कोई यूटिलिटी उसका आपके लिए नहीं होता है, तो दैट इज टाइम यूटिलिटी. ओके, I hope all these 3 points is clear: form utility, place utility, and the time utility. I hope it is clear. हाँ मैम. मैम टाइम यूटिलिटी एक बार फिर से बता दीजिए. टाइम यूटिलिटी, सप्लाइंग गुड्स एट एप्रोप्रिएट टाइम. आपको टाइम पे गुड मिलेगा, गुड्स मिलना चाहिए तभी आपके लिए उसका यूटिलिटी, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं. आप बीमार हो, आपको मेडिसिन इंस्टेंट चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको 4 दिन बाद अगर हम मेडिसिन देंगे तो आपके लिए कोई नो यूज होगा, उसका कोई यूटिलिटी नहीं होगा आपके पास. तो टाइम पे, एप्रोप्रिएट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए गुड्स. ओके, यस आई मैम. होप नाउ इट इज क्लियर. So factors of production, according to Marshall, there are 5 kinds of factor of production, as you also know: land, labor, capital, organization, and the enterprise. Land, labor, capital, organization, and the enterprise is the factors of production. Okay, so question में आ सकते हैं एग्जाम में आपके कि who have given the 5 factors of production? तो Marshall has given. Okay, so law of production हमने पढ़ा, return to a factor and return to scale. Return to scale is also known as long run. मैंने वहां पे बताया था आप लोगों को long run. Okay, it is long run, while return to factor is short run. समझ में आ रहा है ना? अभी बताया था मैंने, return to factor is short run and return to scale is long run. हाँ मैम. स्टूडेंट्स, यस. तो रिटर्न टू फैक्टर्स में क्या होता है? 3 स्टेजेस होते हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, एंड नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर. इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव. बट रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड कांस्टेंट. इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ये फैक्टर्स एग्जाम में आते हैं. रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग दे देगा, कांस्टेंट दे देगा, डिमिनिशिंग दे देगा और एक नेगेटिव दे देगा. तो पूछेगा विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल? तो नेगेटिव वाला पार्ट स्केल का नहीं है. स्केल में कौन कौन से? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग. इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो: CID. C से कांस्टेंट, I से इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, D से डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. ऐसे इजी होगा. मैं भी अपने एग्जाम के लिए ऐसे ही याद करती थी न्यूमोनिक्स के थ्रू. एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें इंक्रीजिंग था, किसमें नेगेटिव था. तो लॉन्ग रन में आप लोग को क्या याद रख लेना है? CID, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग. ओके, नाउ आई होप इट इज क्लियर. Yes, ma'am. ऐसे आप लोग को ज्यादा इजी है. ओके, सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ वेरिएबल टू प्रोपोर्शन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म. Very good. Law of variable proportion is short term, and law of return to scale? Long term. Long run. Okay, very good. So law of variable proportion, it shows the behavior of output as the quantity of one factor is increased and the other factor remain constant. Just because it is a short term analysis, that's why here the one factor is increased and while other factor will remain constant. And further it depicts that AP and MP will start to decline. अभी इसको diagram के through भी understand करेंगे. Okay,
इतना समझ में आया? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, द परसेंटेज इंक्रीजेस इन द फिजिकल आउटपुट when the all input changes in the same percentage are known as the return to school. डिफरेंस इसमें क्या है, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि वन फैक्टर और यहाँ पे बोला है ऑल इनपुट चेंज इन द सेम परसेंटेज, क्योंकि लॉन्ग रन में हम लोग को पता है हम लोग के पास बहुत सारा टाइम होता है तो हम लोग अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, बट शॉर्ट रन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होती है, दैट्स वाई हम अपने फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, दैट्स वाई हियर वन फैक्टर इज इंक्रीज while the other factor remains constant. Okay, difference is clear to all of you? Differences Yes, is clear? ma'am. जब तक Yes, आप ma'am. लोग को डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आगे के पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, दैट्स व्हाई अगर नहीं आ रहा है आप लोग को तो मुझे इन्फॉर्म करिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। ओके, मैम फिर से बता दीजिए। वेरिएबल एंड रिटर्न टू स्केल। हाँ मैम ये दोनों। Variable proportion is related to short term and it explained that quantity of one factor is increased and other factor will remain constant, while raw of return to scale is related to the long term analysis and it says all input will change in the same percentage are known as the return to scale, means यहाँ पे क्या है, input आपके same percentage में change होंगे in comparison to output। okay, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत सारे टाइम है तो हम अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने इनपुट को इंक्रीज करके, लेबर को इनहेंस करके, लेबर नंबर ऑफ लेबर को इनहेंस करके एंड वर्कर्स को इनहेंस करके हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर टाइम। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस मैम। Fixed factor are those factors which doesn't change with the change in output, while the variable factor varies with the changes in the output. Okay, it is clear? Yes, ma'am. ये डायग्राम दिख रहा है सबको, विजिबल है? ये डायग्राम सबको विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. ये दिख रहा है आप लोग को, एक फैक्टर्स है, टीपी की लाइन है, टोटल प्रोडक्शन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी याद होगा, तो टोटल यूटिलिटी की भी लाइन ऐसे गई थी, याद है? हाँ मैम। यस, तो इट इज टोटल प्रोडक्शन और यहाँ पे क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन और ये है एपी, इन तीनों के रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इन तीनों का रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन तीनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी विल बी जीरो, एमपी विल बी जीरो, यहाँ पे ये लाइन आनी चाहिए, थोड़ा बाहर है, यहाँ पे होना चाहिए, जैसा हम लोग पढ़े थे, व्हेन टी यू इज मैक्सिमम एम यू विल बी जीरो, तो सेम यहाँ पे है टीपी एमपी में भी रिलेशन। व्हेन टीपी इज फॉलिंग एमपी इज नेगेटिव, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, जब टीपी फॉल कर रहा है तो एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सेम था ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में भी सेम था ना? हाँ मैम। यस मैम। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेम आपके बीएचयू एमकॉम में आया था। When AP is maximum, when AP is maximum, MP will be equal to AP। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, when AP is maximum, और चार आप लोग को ऑप्शंस दिए थे, तो जब AP मैक्सिमम होगा यहाँ पे तो MP क्या होगा, उसके बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों डायग्राम एकदम सेम है, MP AP, तो when AP is maximum, MP is equal to AP हो जाएगा। ओके, इफ टीपी इज पॉजिटिव, अब टीपी और एपी में रिलेशन देखते हैं, एमपी से हो गया, अब एपी के साथ देखेंगे। व्हेन टीपी इज पॉजिटिव एपी इज आल्सो पॉजिटिव, एपी भी पॉजिटिव है आपका, नेगेटिव तो नहीं है, एपी भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। एपी एंड एमपी, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, बोथ आर इन्वर्टेड यू शेप कर्व, इन्वर्टेड यू शेप कर्व है ये दोनों। एमपी कट्स एपी एट मैक्सिमम पॉइंट, देख रहे हैं एमपी एपी को कट कर रहा है मैक्सिमम पॉइंट पे, वेयर द एपी इज इक्वल टू एमपी, जैसा कि थर्ड पॉइंट में अभी बताया था मैंने, एमपी कट करेगा एपी को व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये थर्ड और सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये सिक्स रिलेशन नहीं है। आई होप ऑल दिस रिलेशन इज क्लियर टू एवरीवन।
Yes, ma'am. आई एम जस्ट गिविंग द 2 मिनट्स, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पढ़ाते जाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। 2 मिनट में आप लोग डायग्राम से रिलेशन क्लियर कर लीजिए। व्हेन इट इज क्लियर इन्फॉर्म मी। Now it is clear to everyone? Yes, ma'am. Anyone have any query? It is very simple relation between TP, AP and MP, and relation is very important for your exam point of view. Okay? So shall I move further? हाँ मैम। Yes, ma'am. Okay, so now we are going to discuss the next topic, which is market. Today we discuss revenue and production. Revenue and production. Now we are going to discuss market. Okay. So what is market, students? In simple word, what is market? In simple, मार्केट मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती हैं। yes. Market is a place where the buyer and the seller meets and the buying and selling activities are done between the buyer and the sellers. Okay. Am I clear? Yes, ma'am. Market. So market refers to a mechanism or an arrangement that facilitate a contract between the buyer and seller for the sale and purchase of the goods and the services. For the goods and services. Okay. What are the components of the marketing? There must be a buyer and seller. Without buyer and seller, there will be no marketing. A product or services, there should be any kind of a product or services. There should be a bargaining of prices, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस कमोडिटी का कोई प्राइस होना चाहिए। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, बायर को मार्केट कंडीशन के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। दैट ऑल दिस आर योर कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग। ऑल व्हेन ऑल दिस थिंग्स हैपन देन मार्केट विल क्रिएट। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, इट इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फिर भी मैं बता देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, local market, regional, national and international. On the basis of time, very short, short, long and the very long. Okay, on the basis of competition, perfect competition and imperfect competition, which we will discuss today. On the basis of function, mixed, ये सैम्पल 3 कोई नहीं है, इसको आप लोग कट कर दीजिएगा, ये कोई नहीं है। स्पेशलाइज मार्केट एंड ग्रेडिंग मार्केट। ओके, ग्रेड के हिसाब से भी मार्केटिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। on the basis of product, commodity, product market, stock market, bullion market, on the basis of legality, legal or illegal market. This is not very much important for your exam point of view. Perfect competition, okay, which is very important topic for your exam point of view. Okay, perfect competition, there should be a features of the perfect competition is very important, students. Again and again I am repeating same thing. Perfect competition features is very important for your exam point of view. There should be a large number of buyer and seller. There is a large number of buyer and sellers and homogeneous product, free entry and exit of the firm,
आप फ्री में एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे. Perfect competition is imaginary market, students. First I am explaining that it is imaginary situation. Okay, ऐसा कोई भी नहीं है कि जहाँ पे large number of buyer and seller हो और वहाँ पे homogeneous product हो. होमोजीन आप मार्केट में जाते हो कहीं भी, वहाँ पे क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलती है? नो, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिलती है. परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है जिसके बारे में बायर को एकदम परफेक्ट नॉलेज हो, पूरा नॉलेज हो, ऐसा नहीं होता है. परफेक्ट मोबिलिटी इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए. एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा. Uniform price policy and horizontal revenue curve. All these are the important features of the perfect competition. And perfect competition is the imaginary situation. ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है. आप फीचर से ही उसके समझ सकते हो कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट हो और कोई भी सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना हो. फ्री एंट्री एग्जिस्ट तो हो सकता है, बट homogeneous and absence of selling and transportation cost, uniform price policy, ऐसा हो सकता है? Is it possible? No, Is it ma'am. possible? मैम रेलवे परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल होगा. रेलवे में तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड Pardon? सेलर्स होते हैं. मैम परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल्स जैसे It is बोला तो मैंने, ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इमेजिनरी सिचुएशन है, कोई एग्जाम्पल नहीं है. रियल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ओके ऐसे मैम. मार्केट का. इट इज इमेजिनरी सिचुएशन. ओके, सो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन. कब इक्विलिब्रियम में होगा फर्म? ओके, सो यहाँ पे देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिसाइड होता है. ये डिमांड है आपका, ये सप्लाईज है, और ये आपका क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है. ओके, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिवेन्यू कर्व है. यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रिवेन्यू कर्व, AR इक्वल टू MR. ये हॉरिजॉन्टल रिवेन्यू कर्व दिख रहा होगा आप लोगों को. So what is the equilibrium under the perfect competition? MR is equal to MC. MR जो होगा वो MC के बराबर होना चाहिए. MR MC के बराबर होगा. And MR must be greater than MC. And MC curve cuts MR from below. MC curve cuts MR from the below. Below से नीचे से कट करना चाहिए. ये 3 पॉइंट्स आपके इक्विलिब्रियम में. MR is equal to MC होना चाहिए. MR must be greater than MC. And MC curve cuts MR from the below. Okay, this is your equilibrium situation. I hope it is clear. Give your reply at least yes or no. मैम बी केस समझ में नहीं आया. MR इज ग्रेटर देन MC. ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है बेटा. यस यस, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है. MR मस्ट बी ग्रेटर देन MC. ओके, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनेगा. यस, ये देख रहे हैं आप लोग पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. MR MC से ज्यादा होना चाहिए. आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज्यादा होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ना. ओके, ओके मैम. सो अंडर शॉर्ट टर्म पीरियड, एक चीज आप लोग में बहुत गंदी आदत है, यू डोंट गिव रिप्लाई. आप क्लास में, आपके प्रीमियम ग्रुप पे भी मैसेज आता है, उसमें भी आप लोग को कोई भी मेंटर्स अगर मैसेज कर देते हैं, यू डोंट हैव टू गिव योर रिप्लाई, आइदर यस और नो. यही क्लास में भी है आप लोगों का. एटलीस्ट कोई टीचर क्लास में मैसेज करता है, कोई भी टीचर, एनी मेंटर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, एनी मेंटर, तो आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये यस रिप्लाई करना चाहिए, यस और नो. सो टीचर को भी लगे कि हाँ स्टूडेंट्स रेडी है क्लास के लिए और नॉट. सो यहाँ पे मेंटर्स आपके लिए आते हैं, आप मेंटर्स के लिए नहीं आते हो. Okay, so come to the point. Under short term period, there are 3 situations: supernormal profit, normal profit and supernormal loss. Now supernormal profit कब होगा स्टूडेंट्स? पहले सिंपल वर्ड्स में आप लोग बताइए.
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब रिवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा होगी, मतलब कॉस्ट से। Yes, very good. When revenue will be more than your cost. So यहाँ पे वही इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वही है MC इक्वल टू MR, और यहाँ पे बोला इन दिस केस AR is more than AC. Average revenue must be greater than your average cost. Okay, average revenue must be greater than your cost. Okay, so normal profit कब होगा? Normal profit कब होगा स्टूडेंट्स? Normal profit कब होगा? जब रेवेन्यू और Average एक्सपेंस revenues. इक्वल हो। When revenue is equal to your cost, when revenue is equal to your cost, when MC is equal to AC and AC is equal to AR. Normal profit is also known as the zero profit because it include in the cost of production. क्योंकि आपकी जितनी cost होगी उतना आपको profit हुआ, तो यहाँ पे कोई भी super normal profit नहीं है. That's why it is known as the zero profit. Okay, that's why it is known as the zero profit. और आपको loss कब होगा? जब रिवेन्यू लेस देन कॉस्ट होगी। Yes, very good. When cost is more than your revenue, then there will be situation of the super normal loss. Okay, three situation is clear: super normal profit and the super normal loss. Okay, so अब डायग्राम के थ्रू भी आप लोग देख लीजिए. यहाँ पे आपको सिचुएशन में प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है? प्रॉफिट। क्या दिख रहा है आप लोगों को? सॉरी, लॉस। कैसे लॉस दिख रहा है? मतलब स्टूडेंट्स आप लोग क्लास में है ही नहीं. यहाँ पे सुपर नॉर्मल Profit. प्रॉफिट का ये दिख नहीं ना आप लोगों को? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं खुद ही नहीं देखी कि लिखा हुआ है और मैं पूछ ली, और देख के भी आप लोग को रिप्लाई नहीं आ रहा है. देख के भी आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है. यहाँ पे सुपर नॉर्मल लॉस में क्या बोला था? MR इक्वल टू MC होगा. MR इक्वल टू MC है यहाँ पे. फिर MR इज ग्रेटर देन MC. MR इज ग्रेटर, आपका जो रिवेन्यू होगा वो आपके मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा. आपका कॉस्ट इतना है लेकिन आपका रिवेन्यू इतना ही है, तो ये आपका सिचुएशन क्या होगा? इतनी जो आपका पोर्शन है वो किसका पोर्शन है? वो आपके प्रॉफिट का सिचुएशन है. दूसरा डायग्राम देखिए, उससे ज्यादा क्लियर होगा. नॉर्मल प्रॉफिट का यहाँ पे आपका मार्जिनल रिवेन्यू, आपका ये जो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम है उसके क्या है? इक्वल है. तो ये कौन सा सिचुएशन हो गया आप लोग का स्टूडेंट्स? ये कौन सा सिचुएशन है? नॉर्मल प्रॉफिट। Normal नॉर्मल profit. प्रॉफिट. तो क्यों नॉर्मल प्रॉफिट है? क्योंकि एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। यस, मार्जिनल रिवेन्यू आपके मार्जिनल कॉस्ट के और रिवेन्यू के कॉस्ट के बराबर है. ओके, सो सुपर नॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट आपके रिवेन्यू से ज्यादा हो गई. यहाँ पे आपका मार्जिनल रिवेन्यू और कॉस्ट उससे ज्यादा हो गई, तो ये आपका कौन सा सिचुएशन हो जाएगा? लॉस का. ये जो इतना पोर्शन है वो कौन सा सिचुएशन है स्टूडेंट्स? ये कौन सा पोर्शन है? लॉस। लॉस। लॉस का है. वेरी गुड. सो आई थिंक डायग्राम के थ्रू क्लियर हुआ होगा आप लोगों को. कॉस्ट का लाइन आप लोग देख रहे हैं कहाँ पे जा रहा है और रिवेन्यू आपका कहाँ पे है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. यस मैम। यस मैम। If in perfect competition, industry is price maker and firm is price taker. Very good. Industry and firm में आप लोग को कुछ डिफरेंस पता है? हाँ मैम। क्या होता है डिफरेंस? ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री, और एक इंडिविजुअल फर्म जो होती है उसको फर्म बोलते हैं। Very nice, very nice. Group of similar firm is called as a industry and individual is called as a firm. Very good. So perfect competition में आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ है, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर और प्राइस टेकर. So in perfect competition, industry is price maker and firm is the price taker. Okay, and elasticity of demand is infinite. ये आपको दिख रहा है वाली लाइन, AR इक्वल टू MR, ये इनफाइनाइट का लाइन है. हम लोग पढ़े थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, याद आ रहा है? हाँ मैम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनफाइनाइट का लाइन पढ़े थे ना.
मैम क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है। यस, एंड जीरो में क्या होगा? जीरो में कौन सा डायग्राम था व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो? पैरेलल टू वाई एक्सिस। वर्टिकल। Parallel to y-axis or the vertical. Okay, when elasticity is infinite, then it is horizontal and the parallel to x-axis. Okay, so perfect competition is clear. A monopoly market. Monopoly, mono means single and polo means sailor. So single sailor. Monopoly word is derived from the two Greek words monos and polion, and monos means single and polion means seller. Polion. Features of every market, either perfect competition, monopoly, monopolistic is very important. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आपको वहां जाके ये डायग्राम बनाना है, वो करना है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फीचर्स उसके क्लियर होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम मोर फोकसिंग ऑन द फीचर्स। ओके, मोनोपोली क्या है? सिंगल सेलर मार्केट है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगा आपको एंट्री में, क्योंकि सिंगल सेलर है तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन होगा। एंड लार्ज नंबर ऑफ प्राइस, और यहाँ पे फॉर्म क्या होगा? प्राइस मेकर होगा। यहाँ पे क्या था फॉर्म? यहाँ पे फॉर्म प्राइस टेकर था, बट यहाँ पे फॉर्म क्या होगा? प्राइस मेकर होगा। प्राइस को वो खुद बनाएगा फॉर्म अपने, क्योंकि वो इंडिविजुअल है तो वो खुद से बनाएगा। ओके, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, सिंगल मार्केट है तो उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर सिनोनिम्स होगा, एक ही सिंगल फॉर्म है तो वही फॉर्म है, वही इंडस्ट्री है। ओके, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है, वो अपना इंडिपेंडेंट प्राइस चार्ज करेगा। AR and MR are slope downward right and MR curve below AR curve. MR curve क्या है? AR curve के नीचे होगा। MR curve जो होता है marginal revenue is below than AR, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग भी होगा क्योंकि सिंगल फॉर्म है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सब इंडिपेंडेंट होंगे। प्रॉफिट इज लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में भी आपको क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है, मतलब what is price discrimination? Price discrimination is different price charged by different customers. आप सिंगल सेलर हो तो आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट चार्ज को, प्राइस को चार्ज करोगे। ओके, एंड डिग्री ऑफ फुल कंट्रोल, यहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है मार्केट पे आपका। एंड प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे इसका डायग्राम याद आ रहा है इलास्टिसिटी का? आप लोग घर जाइएगा एक बार, घर पे आप लोग एक बार देखिएगा इलास्टिसिटी वाले डायग्राम से इन सारे डायग्राम को मिला के। ओके, यहाँ पे क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी क्या है स्टूडेंट्स? प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? मैम लेस देन 1 है ना? लेस देन 1 है। और उसमें क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी क्या था? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? मोनोपोली मार्केट में क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ओके, इट इज क्लियर? वही MCAC का डायग्राम है, और AR MR को बस ये ध्यान देना है कि MR इज बिलो देन AR कर्व। ओके मैम फीचर पॉइंट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 36 क्या है? वो 36 यहाँ पे वो रॉन्ग यहाँ पे टाइप हो गया, ये कुछ है नहीं। ओके, ये कुछ है नहीं 36। So what is price discrimination? Price discrimination is given by Pigou. Okay, there are three degree of price discrimination. First degree of price discrimination, second degree, and the third degree. What is first degree of price discrimination? Firm varies for every unit consumed. Sorry, price varies for every unit consumed. The firm charges the maximum price. एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स जो होते हैं, ये लोग जितना ज्यादा प्राइस होता है उतना यहाँ पे हाईली एक्सप्लॉइटेशन होता है कस्टमर्स को, जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा प्राइस को चार्ज कर लेते हैं। सेकेंड डिग्री क्या होता है? वेरीज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांड, मतलब जितना आप क्वांटिटी डिमांड करोगे, बल्क में करोगे तो प्राइस कम हो जाएगा, लेस करोगे तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। थर्ड डिग्री में क्या बोलता है? प्राइस वेरीज अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एट्रीब्यूट सच एज, सेक्स, इनकम। एज में क्या होता है? जैसे टिकट होता है आपका
तो कम एज का, ज्यादा एज का, ऐसा होता है रिस्ट्रिक्शंस, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड डिग्री में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मींस प्राइस चार्ज बाय डिफरेंट कस्टमर्स एट डिफरेंट रेट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैम सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड डिग्री? सेकेंड डिग्री बोलता है कि प्राइस वेरीज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि आप बल्क में कभी कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो आपको सस्ता मिलता है अगर आप एक इंडिविजुअल उसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, ऐसा होता है ना। हाँ मैम। तो वही वहां पे बोला है सेकेंड डिग्री। इट इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ मैम। Yes, ma'am. Okay. Next market is monopolistic market. Monopolistic market, student, this concept is introduced by the Professor E. Chamberlain in 1932. Very important line. Monopolistic competition market is given by Professor E. Chamberlain in 1932 in his book Theory of Monopolistic Competition. Okay. So what is the features of monopolistic? There are large number of buyer and sellers, product and it is actual market. मोनोपोलिस्टिक आपका कौन सा मार्केट होगा? एक्चुअल मार्केट, जो प्रेजेंट में मार्केट होता है वही मार्केट मोनोपोलिस्टिक होता है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेल होते हैं हमारे मार्केट में, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएशन होता है, नो परफेक्ट नॉलेज, हमारे पास कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं होता मार्केट का, हैवी सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता है ना एडवर्टीजमेंट का, फ्री एंट्री एग्जिस्ट होती है, इनडायरेक्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ फर्म होती है, फर्म नहीं डिटरमाइन करती है, इट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। फर्म यहाँ पे खुद से प्राइस डिसाइड नहीं करती, इनडायरेक्ट प्राइस पॉलिसी, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिसाइड होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस का कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपटीशन होता है। ओके, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व होता है क्योंकि यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। मोर इलास्टिक डिमांड कर्व का क्या होता है स्टूडेंट्स? डायग्राम, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका आप लोग समझ जाइए क्या होगा डायग्राम, ग्रेटर देन 1। सम डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, AR एंड MR स्लोप डाउनवर्ड, AR and MR slope downward and ED is greater than 1। ये यहाँ पे स्मॉल ये गलत है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, इट इज ग्रेटर देन 1। ओके, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। Yes, ma'am. इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। मोनोपोलिस्टिक में आपका ED ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन आपका होता है मोनोपोली में। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फीचर्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ये एक्चुअल मार्केट से आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी होगा क्योंकि एक्चुअल मार्केट ऐसा ही सेम होता है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। एनीवन एल्स? मतलब ये लोग क्लास ज्वाइन करके सो जाते हैं ऐसा लगता है, ऐसा होता है क्या स्टूडेंट्स? क्लास ज्वाइन करके आप लोग सो नहीं जाते हो? नो मैम। No, ma'am. तो फिर रिप्लाई किस लिए नहीं आता है? क्लास यहाँ पे मैं किसके अपने लिए पढ़ा रही हूँ? नो मैम, सोचे थे कि कुछ टाइम मिलेगा, रिवीजन करके आएंगे तो क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम ही नहीं मिला तो मतलब ओके, क्वेश्चन टाइम नहीं मिला, इट्स ओके, बट एम आई आस्किंग, एम आई ऑडिबल, इट इज क्लियर, तो उसका तो रिप्लाई दीजिए आप लोग, यस और नो। ऐसे डम जैसा बिहेव कर रहे हो, यू विल। ओके मैम। सो एटलीस्ट गिव योर रिप्लाई, बी एक्टिव। अभी आप लोग का एक्टिव होने का टाइम है। ऐसे एकदम लेजी लेजी रहोगे तो लाइफ लेजी हो जाएगी। ओके, so next market and the last, oligopoly market. So what is oligo means few and poly means seller. This word derived from the Greek word oligo plus poly means few sellers. Okay,
What are the features of oligopoly? Few big sellers, few sellers है, कुछ बड़े sellers होंगे, and homogeneous and heterogeneous product होगा. Homogeneous means same product and heterogeneous means different product. Okay, same and different दोनों product होगा, मतलब substitute available होगा, different kind of products भी होंगे and same product भी होगा. इंटरडिपेंडेंस होगा. इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, फ्यू सेलर ही है तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट होगा. एडवर्टीजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट का इम्पोर्टेंट होगा. प्राइस रिजिडिटी होगा, मतलब प्राइस आपके सेल आउटपुट सेल के चेंज होने से नहीं होगा चेंज. ओके, प्राइस रिजिड होगा. इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व, यहाँ पे आप डिमांड कर्व को डिटरमाइन नहीं कर पाओगे. ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्राइस रिजिडिटी इज फीचर ऑफ, तो इट इज द फीचर ऑफ ओलिगोपोली. ओके, डिफिकल्टी इन एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म, यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिस्ट में डिफरेंट होता है. ओके, and non-price competition is common. Features is clear to everyone? मैम प्राइस रिजिडिटी एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, क्यों होता है प्राइस रिजिडिटी? और मैम लास्ट नॉन प्राइस कंपटीशन इज कॉमन. फिर से फर्स्ट जिसने पूछा था उस फिर से एक बार रिपीट करो, कौन सा पॉइंट? 5th पॉइंट मैम. कौन सा? 5th? यस मैम. प्राइस रिजिडिटी. कौन सा? प्राइस रिजिडिटी. प्राइस रिजिडिटी. Price rigidity is a situation where the price charged for certain goods do not change in spite of change in input costs or demand patterns. मतलब डिमांड में चेंज होने की वजह से आपके प्राइस में चेंजेस नहीं होते हैं. दैट इज प्राइस रिजिडिटी. मीन्स कि अगर आपके प्राइस चेंज कर रहे हैं तो हम लोग भी कर ले, तो यहाँ पे नहीं होता है ऐसा. ओके मैम ये तो समझ में आ रहा है, मगर क्यों नहीं चेंज होता ये मैं पूछना चाहता हूँ. तो यहाँ पे फ्यू सेलर्स ही हैं, इसीलिए फ्यू बिग सेलर्स है. तो मैम उनमें तो कंपटीशन होता ही होगा. क्या? तो मैम जो फ्यू सेलर्स हैं उनमें तो हाँ, कंपटीशन तो होता अगर होगा. आप अपना प्राइस को, अगर मान लीजिए फ्यू बिग सेलर्स है, 4-5 ही सेलर्स है, फॉर एग्जांपल 4-5 सेलर्स है, अगर एक ने अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो अदर्स के प्राइस कम है, तो वो कस्टमर क्या करेंगे, उसके पास मूव करने लगेंगे. कस्टमर क्या करेंगे, दूसरे के पास जाने लगेंगे. दैट्स व्हाई यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी हाई होता है. ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर. ओके मैम. नॉन प्राइस कंपटीशन भी वही है कि यहाँ पे कंपटीशन प्राइस के बेस पे नहीं होता है, प्राइस के बेस में होता है प्राइस कंपटीशन. ओके, प्रोडक्ट के बेस में भी आप अपने प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हो अदर से, उसको अलग बना सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो. ओके, किंग डिमांड कर्व. किंग डिमांड कर्व क्या होता है? किंग डिमांड कर्व shows the behavior of oligopolist firm in which rival firm decrease the prices to secure the market share but it doesn't increase the prices. I am repeating again. ये ओलिगोपोलियन का बिहेवियर को शो कर रहा है, इन विच द राइवल फर्म, कंपटीटर फर्म है जो डिक्रीज द प्राइसेस टू सिक्योर द मार्केट शेयर बट इट डजंट इंक्रीज द मार्केट. मीन्स राइवल फर्म जो आपका कंपटीटर फर्म है वो क्या करेगा, अपने प्राइस को डिक्रीज करेगा. क्यों? अपने मार्केट को सिक्योर करने के लिए, बट इट डजंट इंक्रीज द प्राइस. वो अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करता है. ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ प्राइस रिजिडिटी. आई होप इट इज क्लियर नाउ. इसलिए मैंने किंग डिमांड कर्व आप लोग को पहले इसका डेफिनेशन बता दिया. नाउ इट इज क्लियर. मैम इसमें बस प्राइस घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं? व्हाट? प्रोडक्ट की प्राइस केवल घटाएंगे ही इसमें? आप मोस्टली प्राइस को डिक्रीज ही करते हो, इंक्रीज नहीं करते हो. अगर इंक्रीज कर दोगे तो आपके कस्टमर इधर उधर हो जाएंगे, आप अपने मार्केट को सिक्योर नहीं कर पाओगे. या तो बराबर में चलो या फिर अपने कंपटीटर से प्राइस को रिड्यूस करो. ओके ओके मैम. What types of oligopolies? Pure oligopoly. What is pure? There are different types of oligopoly. Pure oligopoly बोलता है homogeneous product. सबके प्रोडक्ट homogeneous होंगे.
डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली क्या बोलता है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, सबके प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। ओके, ओपन ओलिगोपोली फ्री एंट्री ऑफ फर्म होगा। क्लोज ओलिगोपोली नो परमिशन ऑफ एंट्री होगा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा यहाँ पे। पार्शियल ओलिगोपोली एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, यहाँ पे प्राइस लीडरशिप होगा जो प्राइस को डिटरमाइन करेगा। फुल ओलिगोपोली एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, यहाँ पे कोई प्राइस लीडरशिप नहीं होगा, वो लोग आपस में फर्म अपना प्राइस डिसाइड करेंगे। कोलिजो ओलिगोपोली when price and output is decided by the mutual understanding of the firm, मतलब सारे फर्म मिलके प्राइस को डिसाइड करते हैं, then it is called as a collusive oligopoly। नॉन collusive इसका जस्ट रिवर्स उल्टा, no agreements among the firm। I hope price types is clear। यहाँ पे बहुत शॉर्ट वर्ड में मैंने लिखा हुआ है आपके पीपीटी में कि आपको इजिली समझ में आ जाए। मैम कहानी पार्शियल ओलिगोपॉली में कैसे प्राइस लीडरशिप करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, फर्म अपने म्यूचुअली डिसाइड करके करेगी। कोलिसिव ओलिगोपोली जो लिखा हुआ है हाँ, वो ऐसे करेगी। मैम पार्शियल ओलिगोपॉली में बोल रहा हूँ। पार्शियल में तो बोला एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, यहाँ पे कोई भी प्राइस लीडरशिप नहीं होगा, कोई प्राइस लीडर नहीं होगा। सॉरी एग्जिस्ट पार्शियल ओलिगोपोली पूछा आपने। हाँ मैम, यहाँ पे एक लीडर होगा जो प्राइस को डिसाइड करेगा कि हाँ सारे फर्म के पास ये प्राइस होगा। एग्जिस्टेंस, यहाँ पे प्राइस लीडरशिप एक एग्जिस्ट करेगा, लीडर जो डिसाइड करेगा कि हाँ ये फर्म के प्राइस होंगे प्रोडक्ट के। ओके, मतलब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री होगा सारे फर्म की, वो डिसाइड करेगी प्राइस। लीडर होगा जो डिसाइड करेगा। यस, मुझे लगा आप एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप पूछ रहे हो। आई होप इट इज क्लियर। ओके मैम। मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, नेम देख लीजिए। कर्नॉट मॉडल है, बेट्रॉन्ट है, स्वीजी किंग डिमांड कर्व मॉडल है, कोलोजिव मॉडल है एंड द गेम थ्योरी है। सब मॉडल्स के नेम आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ। ओके, डिओपोली क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ओनली टू सेलर। ये भी इमेजिनरी सिचुएशन है, ओनली टू सेलर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होगा, बोथ हैव कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑन मार्केट, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, हाई इंटरडिपेंडेंस होगा और हाई बैरियर्स टू एंट्री होगा। हाई बैरियर्स होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली टू सेलर्स है तो दो ही जाएंगे। डिओपोली मॉडल्स कौन कौन से हैं, कर्नॉट है, चैम्बरलिन है, एजवर्थ है, स्टैकलबर्ग है एंड बेट्रॉन। ये सब मॉडल्स के नेम आप लोगों को सिर्फ पढ़ने हैं। ओके, इसके अंदर डेफिनेशन आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ओके, मोनोप्सोनी एक सिंपल टर्म है आप लोगों का, वन बायर एंड मैनी सेलर। इज इट पॉसिबल स्टूडेंट्स इन रियल लाइफ, ऐसा कभी पॉसिबल है कोई भी मार्केट? नो मैम। तो यहाँ पे ये मार्केट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इस पॉइंट से, वन बायर एंड मैनी सेलर इज सिचुएशन ऑफ, तो इट इज द सिचुएशन ऑफ मोनोप्सोनी। ओके, दैट्स व्हाई मैंने मेंशन कर दिया इसको भी। ये कॉस्ट का आप लोग इसमें आ गया है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट इज कॉल्ड एज अ नेट प्रॉफिट। ओके, आप लोग मुझसे बहुत दिन से बोल रहे थे कि मैम सारा जो आपका थ्योरीज है उसके राइटर कौन कौन से है उसको आप एक जगह दे दीजिए। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत लोग मैसेज किए थे, तो लास्ट स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारे, आप लोग सारा याद कर लीजिएगा। आपने प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखे होंगे तो सब पेपर्स में से मैंने ये सब ऐड किया हुआ है, सारे पेपर्स को कलेक्ट करके उन सब में से जो जो पूछा था वो ऐड किया हुआ है इसमें। ओके, जैसे थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट में रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट कौन दिया है, वॉकर दिए है। वेस्ट थ्योरी किसने दिया है, डेवेनपोर्ट ने दिया है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी चिपमैन स्ट्रिगलर ने दिया है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हॉले ने दिया है। अनसर्टेनिटी थ्योरी नाइट ने दिया है। सोशलिस्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दिया है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जेबी क्लर्क ने दिया है। इनोवेटिव शुम्पेटर ने दिया है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आ रहा है? आप लोग पढ़े भी होंगे कुछ लोग। यस मैम। तो ये आप लोग के लिए अच्छा है, मैंने एक जगह दे दिया है। हाँ मैम।
अच्छा है ना? तो आप लोग इसका पीडीएफ अच्छे से रख लीजिएगा और एग्जाम के टाइम इसको पूरा लर्न कर लीजिएगा. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, यहाँ पे सब है. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है. माइक्रो मैक्रो को किसने डिवाइड किया था? रैग्नर फिश ने. मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल का. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो नोन एज स्टूडेंट्स. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो नोन एज गॉसेन फर्स्ट लॉ. Gaussian first law. गॉसियन फर्स्ट लॉ. वेरी गुड. यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आप लोग का. इंडिफरेंस कर्व किसने दिया? जीरो बेस बजटिंग, सब कुछ दिया हुआ है. ओके, दिख रहा है आप लोग को? वेल्थ डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन, क्वाजी रेंट किसने दिया हुआ है? थ्योरी ऑफ डिमांड किसने दिया है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दिया है? सब कुछ दिया हुआ है इसमें. आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन. एंड यस आप मैम. लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था, पोर्शन था, वो खत्म हो गया आज. माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब एक दो ही टॉपिक बचे होंगे तो वो वी विल डिस्कस. अदरवाइज आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर पोर्शन जो था वो खत्म हो चुका है आज. ओके, सो आज जिसने क्लास नहीं किया उसका बहुत लॉस होगा, बट आप लोगों ने तो किया. ओके, सो आप लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन खत्म हो गया है. सो इट इज इनफ फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. हाँ मैम. मैम एनी हैव एनी एक क्वेरी? एक क्वेरी था मैम. पीडीएफ नहीं मिला अभी तक अभी पीडीएफ नहीं मिला है? प्रीवियस क्लास का. नहीं मैम. ओके, मैं बात करके कोऑर्डिनेटर से आपको सेंड करती हूँ. ओके, और मैम आज की क्लास की भी पीडीएफ. ओके, यू विल गेट इट. ओके, so it's enough for today's class. Bye bye students, enjoy your day, happy learning. बाय मैम. Bye. Thank you, ma'am.